Hello my dear students, so far we have discussed that whenever a charge moving with some velocity v is placed in a magnetic field, it experiences force, and this force is given by q v vector cross of v vector. So if the velocity of the particle is 0, it does not experience any force. If the direction of the velocity of the particle is same as the direction of magnetic field, then also it does not experience force. मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलली मूव कर रहा है, क्लियर, या फिर एंटी पैरेलली मूव कर रहा है, तो देन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 and then there is no force experienced by this charged particle. Today we will discuss the force on a current carrying conductor. Suppose एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया. सपोज दिस इज द कंडक्टर, किसी भी शेप का लीजिए, नो इश्यूज. तो इसको थोड़ा बड़ा निकालता हूँ क्योंकि हम लोगों को इसका थिकनेस भी कंसिडर करना हो. सो दिस इज अ कंडक्टर दैट इज कैरिंग करंट. नाउ करंट इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. So suppose this is the direction of current. अब direction of current क्या होता है? What is the direction of the current? Direction of the current is against the direction of the flow of electrons. So मतलब electrons इधर flow कर रहा होगा, electrons इधर flow कर रहा होता, positive charge इस direction में move कर रहा होगा, बराबर है. इसको E plus से मैं represent करता हूँ. So that means the direction of the current is same as the direction of the positive charge. Clear? हम लोग क्या करते हैं कि we will consider a small element of this conductor. The length of this is say dl. ये कंडक्टर का लेंथ जो हमने कंसिडर किया है वो कितना है, dl. Now suppose n is the number of electrons per unit volume. हमने पहले करंट जब चैप्टर डिस्कस किया था, that time we had discussed that if Vd is the drift velocity, then current I is equal to what? NEAVD, if you recollect. Okay, current flowing through a conductor I is equal to what? NEAVD. N is what? Number of electrons per unit volume. E is what? The charge on each electron. A is what? Area of cross section. So you suppose इसका area of cross section A है. And Vd is what? Drift velocity. Drift velocity, I think you understand. Drift velocity is the net velocity of the electrons in a particular direction when we apply potential difference. जब potential difference apply करेंगे तब. Is this point clear? So इतना current इसमें से flow होगा. अभी हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट dl लिया है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A. अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये लेंथ एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A. So therefore, what is the small volume that we are considering there? A into dl. Is this point clear to everybody? Area of cross section A है, length dl है, so the volume is A into dl. So what is the number of electrons present in this? इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? स्मॉल है. सो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n into A into dl. Clear to everybody? Now what is the charge therefore? What is the total charge present in this? Into E. Charge on one electron. भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज है त्याने मल्टीप्लाई करा. Clear? So you will get what? The total charge that is present in this. Okay. So now see, this is the charge that is moving. Now each E plus
ओके, सपोज vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका कितना है vd. सो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बजाय हम लोग E प्लस लेते हैं अभी. हाँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो हम लोग ये मानेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज दैट इज E प्लस इस डायरेक्शन में मूव करेगा. फाइन. सो देयरफॉर व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच E प्लस या ईच चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, Q B वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, बराबर है. अब ये B वेक्टर और V वेक्टर तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर इट विल बी Q इनटू B इनटू B. क्लियर. सो अब इस केस में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है इसका, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ये वाला इधर, बराबर है. अब अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ दिस मच. क्लियर. तो हमारे पास तो कितने चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ से जो मूव कर रहे हैं, कितने चार्ज पार्टिकल्स है, Na इंटू dl. इनके ऊपर का चार्ज इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना चार्ज आ जाएगा. क्लियर. तो चार्ज कितना हो गया, Na dl इंटू कितना, Na dl इंटू E प्लस. ई चार्ज तो E है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो. दिस इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय V इंटू B. अब इस केस में जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी है, ईच चार्ज इज मूविंग विद व्हाट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इसकी जगह पे क्या मैं Vd लिख दूं, बराबर है. अब यहाँ अगर देखोगे तो N E A Vd क्या देगा हमको, this will give us what, current. Clear. So this will be equal to NEA Vd की जगह पे मैं लिखता हूँ I and then dl into V. So this is the small force experienced by all the charges that are moving in this small volume. So therefore total force experienced over the total length of the conductor will be equal to what, integrate कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ दिस I B into dl over the entire length. अब इसमें करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना ही है. Is it varying? No. So it's constant. B हमने constant magnetic field रखा हुआ है, so there is no question of it changing. Integral of dl will be equal to what, L. So therefore the force experienced by a current carrying wire which is placed in a uniform magnetic field is equal to what, I B into L. Clear. अब जो भी लेंथ है इसको डायरेक्शन कहाँ किसके कारण मिलती है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके आई विल इरेज दिस. इसको जनरलाइज करके लिखता हूं, दिस फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर. Clear? So अगर if there is some angle between these two things, so this will be equal to what, I L B into sin of theta. So इसी से आप लोगों को पता चल जाता है कि if there is no current flowing through this conductor, will it experience any force? It will not experience any force. So force will be equal to what, 0. Clear? या फिर if theta is equal to 0, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो then also it will not experience any force, because if theta is equal to 0, sin 0 is 0. So total force will be equal to what, 0. Clear? So theta horizontal को है या फिर मैग्नेटिक फील्ड, थीटा हॉरिजॉन्टल फील्ड से लिया है हमने या फिर मैग्नेटिक फील्ड से हमने इधर लिया, ये दोनों इसमें तो अलग अलग फोर्सेस आएंगे. अलग अलग प्लेन्स पे. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस प्लेन ऐसा रखा हुआ है कंडक्टर, सो देन द एंगल विल बी 90 डिग्री. अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की
ओके, और ये डायरेक्शन है तुम्हारे कंडक्टर मतलब करंट की, तो देन देयर इज सम एंगल बिटवीन देम। तो फिर वो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज वेक्टर के बीच से निकालना है। यस यस यस, एल का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन मिलता किसके कारण है, करंट के कारण। तो ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया सपोज, और ये हमने ऐसा कंडक्टर रखा है जिसमें से करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो अब एल वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, तो दिस इज द एंगल दैट वी विल बी कंसीडरिंग। ये तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट वेक्टर के लिए हो गया। सपोज हमारा ये है परपेंडिकुलर प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा करंट वेक्टर। हमने अगर इस फॉल्ट अंदर देखो ऐसा थोड़ा डायवर्ट कर दिया तो चार्जेस का फ्लो तो इस डायरेक्शन में होगा, फिर भी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। जो हमने लास्ट इसमें देखा था अगर ऐसा हो मतलब एंगल अगर मैग्नेटिक, अगर वो डिफरेंट प्लेन्स में ही है सपोज, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और इस प्लेन में वो है, तो भाई चाहे वो कैसा भी रहने दो, इनके बीच का तो एंगल 90 डिग्री है। एज लॉन्ग एज इट इज इन दिस प्लेन, चाहे ऐसा हो कैसा भी हो, द एंगल विल बी 90 डिग्री। So therefore sin theta will be 180. So what is the maximum force that it will experience? IL into B. Shall I repeat it once again? मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर इज कैरिंग करंट I। ओके, अब करंट कैरी कर रहा है, इसका मतलब चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू दिस। क्लियर? अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर है। क्लियर? बस इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं ना, इसका मतलब E प्लस पॉजिटिव चार्ज इक्वल पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि E प्लस का डायरेक्शन इधर है। गेट इट? अब हमने क्या कर दिया, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ dl, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मतलब कितना वॉल्यूम है हमारे पास, A into dl। अब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n, तो इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, स्मॉल n into A into dl, बराबर? क्लियर है? सो इतने पार्ट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये हमने देखा। तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना चार्ज है NaDl, इतने चार्ज, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके ऊपर टोटल चार्ज इतना हो गया, E से मल्टीप्लाई करने पर इसको V और B से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट लेकिन इसमें इस केस में V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय B will give us the force on the entire charge that is present in this small volume element dV, ये वाला। क्लियर? सो पूरे कंडक्टर में जितने भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, बराबर है? अब इसमें से NeAVD क्या है ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, NaE और Vd, बचा क्या है, ये dl और b। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं, दिस इज I। सो इंटीग्रेट करेंगे I b into dl, I और b तो कांस्टेंट है, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर मिलेगा, एंड देयरफॉर दिस इज द फोर्स। इसको जनरलाइज किया हमने IL वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर, तो दिस इज ILB into sin ऑफ थीटा। इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई करंट नहीं है तो फोर्स नहीं है। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी फोर्स नहीं है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैंने ऐसा रख दिया, विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट विल नॉट एक्सपीरियंस। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसका एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोगों को कुछ चीज़ें सीखनी है, समझनी। ओके, सो क्विकली नोट डाउन करो। जरूरी है कि हम वेलोसिटी प्लस के डायरेक्शन में, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, मतलब इक्वल पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है विद द सेम वेलोसिटी Vd, इसीलिए अगर चार्जेस को मूव करते हैं तो एक तो सब फोर्स को इसमें मूव करेगा पूरा कंडक्टर। कंडक्टर बताता हूँ,
Just write it down, then I'll explain. आपको पहले का बता दिया होगा। Done? So now you know that जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, it will experience a force and the force is given by कितना I L B into sin of theta. Clear? या फिर I L B I L vector cross of B vector. ठीक है? So suppose हमको एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. So this is the direction of magnetic field B and this is the direction of the current flowing through this conductor. The length of the conductor is L. So what is the force in this case experienced by this conductor? F will be equal to what? I L B into sin of theta. Now what about the direction? Because this is force, no? We must know the direction. Direction क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब वही रूल लगेगा. ये L है, इधर से हम लोग कर्ल करेंगे किसके डायरेक्शन में? B के डायरेक्शन में. So thumb points in the direction of magnetic field. या फिर हम लोग सेम रूल हमारा यूज कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल. क्या करोगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, पुश. So the direction of force will be, ठीक है? Understood? So this is how you will get the direction. Direction is obtained by right hand thumb rule या फिर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? palm rule, right hand palm rule. Okay? क्लियर? चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का. सपोज अब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B. इस बार हमारे पास जो कंडक्टर रखा हुआ है, the conductor is like this. यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, इधर से भी I जाएगा. ये लेंथ है, this is L and this length is also L. Understood? इसको जोड़ देते हैं. This angle is 37. This angle is also 37 degrees or 53 degrees, whatever you want. Suppose 37 degrees. So अब क्या करोगे? इन दोनों को सेपरेटली कंसीडर करो. ओके, इसको we will take this one. Magnetic field का डायरेक्शन is into this. ये वाला कंडक्टर ऐसा है. I, the length is L. So it will experience a force F given by, बोलो डायरेक्शन इनमें एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. भैया हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्रीज है, बट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल हमको किसके साथ कंसीडर करना है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. दिस इज द वेलोसिटी. व्हाट इज द फोर्स? इस डायरेक्शन में. यस. सो दिस वन इज F1. अब दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? करंट लेंथ इनटू
magnetic field into 9 sin of 90 is 1. Yes, sir. So therefore this is equal to I IL into B. डायरेक्शन आप लोगों को पता है. ओके क्लियर. एंड देन इसके ऊपर देखो F2, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस सेकंड कंडक्टर. सेकंड कंडक्टर ये है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है F2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है. सेम एज दिस वन. सो दैट इज IL into B. सो ये हमारा फोर्स है. ये कितना होगा IL into B. फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग है. सो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में अगर फोर्सेस नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है, सो व्हाट डू वी डू. क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट्स. ओके. सो अब क्या करो, इन दोनों फोर्सेस को एक जगह पे कंबाइन करते हैं. ओके. या फिर पहले इंडिविजुअली क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स डिटरमाइन कर लेंगे एंड देन दोनों को, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसी को. सो इफ दिस इज 37, हाउ मच इज दिस वन. 37. क्लियर है. करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दिस वन. दिस इज 37. देखो ये और ये तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अंडरस्टूड. दिस वन सी, ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ठीक है. और ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अंडरस्टूड. इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए. समझ में आ रहा है ज्योमेट्री क्या. बड़ा निकालो यहाँ से. ये वाला लाइन, दिस वन. ओके. ये हमारा कंडक्टर. ओके. एंड देन इसके ऊपर जो फोर्स आता है वो तो परपेंडिकुलर होगा इसको. ये वाला है इसका फोर्स F2. सिमिलरली ये हमारा दूसरा कंडक्टर है. इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा. मैं क्या करता हूँ, इसको ये लाइन ड्रॉ करता हूँ. आई विल शो दिस फोर्स आल्सो हियर. ओके. एंड देन इस लाइन को मैं परपेंडिकुलर लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ भी ड्रॉ कर रहा हूँ. नाउ यू नो दैट दिस एंगल इज 37 degrees. So that means this angle must also be 37 degrees. ये वाला बराबर है. अब देखो ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सिमिलरली ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. मतलब दिस प्लस दिस इज 90 एंड देन दिस प्लस दिस इज आल्सो 90. इसका मतलब ये और ये सेम होना चाहिए. ये भी 37. बराबर. नेक्स्ट इज दिस वन. हम लोग जानते हैं कि ये एंगल 37 है. इसका मतलब ये एंगल भी 37 होना चाहिए. अब ये और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये तो हमारा कंडक्टर है, ये फोर्स है, एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है. मतलब दिस प्लस दिस मस्ट बी 90. ये हमारा ये लाइन है हॉरिजॉन्टल और ये इसको वर्टिकल परपेंडिकुलर है. मतलब ये और ये मिला के भी 90 होना चाहिए. सो ये भी 37 ही होगा फिर. ठीक है. सो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक ही जगह पे ड्रॉ करता हूँ. सी दिस वन इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हमारा फोर्स F1 है. दिस वन, ये वाला फोर्स है F2. ओके. ये हमारा वर्टिकल. अब देखो इफ दिस इज F2, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट. दिस वन. ये एंगल 37 डिग्री है, हम लोगों को पता है ये वाला. And then this one is also 37 degrees. So if this is F2, what is this component? क्या component है? F2 cos 37. And how much is this component?
F2 साइन ऑफ 37. अब F2 और F दोनों तो सेम ही है मैग्नीट्यूड में, क्लियर. एंड देन दिस वन अगेन, दिस इज F1 cos of 37, this one is F1 sin of 37. So F1 और F2 तो दोनों सेम ही है मैग्नीट्यूड में. इसका मतलब this one is exactly equal to this one but it is in opposite direction. So therefore इनका नेट कितना होगा? जीरो. ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. So फोर्स बचता कौन सा है? Only this. So net force is equal to twice of F into sin of 37. भाई F1 F2 दोनों सेम ही है, इसकी जगह पे F लिखता हूँ मैं. So F into sin of 37. So this is equal to 2 times of what was the force? I L into B. हमने कैलकुलेट किया था. Sin 37 is how much? 3/5. So this is equal to 6/5 I into L into B. So this is the force on this conductor. Did you understand? समझ में आया क्या? So this conductor में force लगा है, तो वो force charges की वजह से ये charge हो रहा है. इस force से जो charge थोड़ा shift होगा क्या? Charge जो move कर रहे हैं उस force में थोड़ा इस left side में shift होगा क्या? चार्ज अगर ड्रिफ्ट करेगा तो कंडक्टर ड्रिफ्ट. कोई drift नहीं हो रहा है. बिल्कुल कंडक्टर ड्रिफ्ट हो रहा है. इधर थोड़ा सा फोर्स है, जहाँ फोर्स है, नेट फोर्स है, देयर मस्ट बी मोशन. कंडक्टर भी ड्रिफ्ट करेगा. मतलब अगर हम किसी चार पार्टी मतलब इसको बांध के रखें इसको तो उसके ऊपर फोर्स आएगा. हो गया, लिख लिया. See now you learn one trick जो तुम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगी. सर आई और बी तो कांस्टेंट है, हाँ. तो डायरेक्ट एल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते. एल को इंटीग्रेट नहीं, बट ये टोटल लेंथ जो है ना, देखो डायरेक्शन फोर्स के अलग अलग आ रहे हैं ना. लेंथ को इंटीग्रेट करने पर तो अननेसेसरी 2L आ जाएगा, बराबर है. सो इट विल बी मिसलीडिंग, क्योंकि फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होगा तो ठीक है ना. सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमारे काम में आ रहा है, ओनली दिस वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इस केस में आई विल गिव यू अ बेटर ट्रिक. सी, ये हमारे कंडक्टर्स है, दिस वन एंड दिस वन. नाउ इफ दिस इज थीटा, व्हाट इज दिस वन? 90 है तो वो 50. नहीं, ये ट्रायंगल ले. हाँ. Yes sir. वो 50. This will be equal to what? No, this length I am talking about. Then L into sin of 37, yeah, sin of theta. Yes sir. Similarly, if this is also theta, this is how much? L sin of. L sin of theta. So total length will be equal to what? 2L sin of. 2L into sin of theta. sin of theta. इस केस में sin of 37. ठीक है. So now effectively ये जो कंडक्टर है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे. ये वाला कंडक्टर, ये एंड A था, स्टार्टिंग एंड, ये एंड B है. सपोज चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाके यहाँ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? A to B. सो हमको जो लेंथ लेना है, सी द फोर्स इज इक्वल टू, हमको फोर्स क्या पता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर? QV into B. ओके, इस केस में Q नहीं, I है, बराबर है. सो दिस इज I B into L की जगह हम लोग क्या लेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है ना. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट? देख पा रहे हो? So this is IB into, what is this one? 2L into sin of 37. Is it the same? Is it the same or different? कहाँ गया? अच्छा, erase कर दो. Same? So therefore अब इतना आसान हो जाता है. ये है? हाँ? नहीं बेटा, rate of change of displacement is velocity. नहीं, वो तो एक चार्ज पार्टिकल अगर होता तो. अभी कंडक्टर का हमारा क्या आया था? I L into B, I B into L.
सो आई बी तो करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है। और बात रही एल की, एल कौन सा लोगे, ये डिस्प्लेसमेंट वाला। ओके, एंड जहां तक डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन आल्सो यू विल गेट, दिस इज द ए टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये है क्लियर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ये, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये, व्हाट इज द फोर्स। क्या इसमें भी यही फोर्स आया था देखो, क्लियर। सो दिस वे यू हैव गॉट अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक कि मैं इसको क्या करें। हम लोग इसके और एप्लीकेशंस अभी डिस्कस करेंगे, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि वाह ये तो चीज है सच। थोड़ा सा नोट कर लो फार्मूला एटलीस्ट, फिर घर में जाके लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो B है और I दोनों कैसे है कांस्टेंट, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर B must be constant। दो कंडक्टर आ जाते हैं यहाँ पर, फिर एक कंडक्टर, फिर तो ये अपने ये नहीं होता। दो कंडक्टर, मतलब सपोज वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सपोज यहाँ से दो कंडक्टर ज्वाइन होके I1 + I2 I3 दे रहा है, फिर तो अपने ये नहीं होता। ऐसा क्यों होगा, तुम एक ही कंडक्टर डाल रहे हो, तीसरा नहीं है, तुमने बस इसको बेंड कर दिया है। मतलब यहाँ से उस पॉइंट पर जब हम ऐसा वाला एक कंडक्टर ला दें तो फिर जो अपने ये नहीं होगा। नहीं, तीसरा कंडक्टर नहीं, एक ही कंडक्टर एक ही कंडक्टर होगा, एक ही कंडक्टर होगा, लेकिन जो है वो पॉइंट है जहाँ से हमने थीटा लिया उसको जो है हमने एक और एक ऐसा तो वो एक कंडक्टर कैसा होगा बेटा? हो गया ना, तो सिंगल पॉइंट हो गया, सिंगल कंडक्टर तो हो गया, ये भी तो वाइड हो गया। चलो तुम्हारी ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे थिंकिंग को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए मैं कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने एक कंडक्टर रख दिया है, ये तो पॉसिबल है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो वायर बड़ा सा वायर है, इसको मैं इधर लेके गया, फिर उसको बेंड कर दिया, फिर बेंड कर दिया, फिर बेंड कर दिया, पॉसिबल। ओके, ये लेंथ है L, दिस इज ऑल्सो L, सब लेंथ L, एंड दिस इज कैरिंग करंट इन दिस डायरेक्शन, ये तो पॉसिबल है, क्लियर। अब देखो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू स्टार्ट विद, F1 इज इक्वल टू हाउ मच, I B into L, डायरेक्शन इधर, ठीक है। देन दिस वन डायरेक्शन, करंट का ये डायरेक्शन है, मतलब L I L का ये डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड I L into B, I B into L, रोटेट नहीं, देखो तो देन इसके ऊपर देखो फोर्स F3, ये कितना होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करो फटाफट। ये है करंट इधर नीचे, उस साइड में सर कैंसिल सर, इधर F4 इधर, मैग्नीट्यूड सबका सेम, तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, 0। अब इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वापस पहुंचे यहीं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 0, तो व्हाट इज द फोर्स, I B into डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से गए यहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट इज 0, फोर्स इज आल्सो क्लियर। सो क्विकली ड्रॉ दिस वन, हो गया कि नहीं काम आसान। There is no force, no displacement, no rotation, nothing, because all forces are cancelled.
चलो और एक सॉल्व करो तो। हाँ भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। This is the conductor, circular conductor I have placed in this. What is the force experienced by this conductor? बोलो बेटा। What is the force experienced? Zero. Why? Because conductor यहाँ से शुरू किया है हमने, यहीं पे तो पहुँच गए। So where is the force? There is no displacement, no force. Force is zero. चलो थोड़ा सा चेंज करते। If this is a semi-circular conductor, यहाँ पे सेंटर है, the radius is r. यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, what is the displacement? What is the displacement? 2r. But displacement is the shortest distance. So यहाँ से यहाँ गए, what is the displacement? 2r. So therefore force on this conductor will be equal to what? I into b into 2r. What is the direction? A to b displacement, magnetic field, force. आसान? Clear or not? चलो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये प्रोमिनेंटली आएगा, इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। डायरेक्शन किस तरफ लेना है ये भी समझना जरूरी है, एंड कितना फोर्स एक्ट होगा ये भी समझना। नाउ सपोज देयर इज अ कंडक्टर लाइक दिस वन। कितना हो गया? सपोज इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3, इसका लेंथ L4। ओके, तो ये पॉइंट A हो गया हमारा, ये पॉइंट B हो गया। ओके, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है these are suppose 2 and 5, और इसके कोऑर्डिनेट्स है this is 5 and यहाँ पे 7। So we want to find out the magnetic मतलब force on this current carrying conductor। यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है। क्या करोगे? दो ऑप्शन है, या तो इस हर एक पार्ट के ऊपर जो फोर्स होगा ये फाइंड आउट करो, फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो। इसके ऊपर फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर, ये F1। क्लियर? द मैग्नीट्यूड इज व्हाट? I L1 into B, I B into L1। डायरेक्शन ये। सिमिलरली इसके ऊपर फोर्स देखो, ये इधर, इसके ऊपर इधर, इसके ऊपर इधर, ये सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स मिलेंगे, इनको ऐड कर दो। फोर्स है तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, या तो क्या कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू I, L की जगह पे क्या होगा अब हमारा? वही तो होगा L1, L2, L3, L4, L5, L4 क्रॉस ऑफ B वेक्टर। अब इसकी जगह पे ये सारे वेक्टर्स ही तो है, इनको ऐड करने के बजाय हम लोग अभी क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट XA, डिस्प्लेसमेंट AB इनटू B। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? V वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 5i प्लस 7j माइनस इसका पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 5j। So how much is this? 3i प्लस 2j। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और हमको डायरेक्शन तो हम वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये तो हमको मिल गया वैसे ही। मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड XAB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर? ये कितना हो गया?
9 plus 4 root of 13. Clear? So then force is equal to what? I root of 13 into B. Clear? So this is the net force experienced by this conductor. Easy or difficult? Easy, पूरा काम ही आसान हो गया. सर ऐसा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ जैसे पैरेलल वाला कनेक्टर. भाई एक ही कंडक्टर है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होने का सवाल ही नहीं है. सर ऐसा नहीं कर सकते हो, हमने लास्ट टाइम किया था. देखो ये कंडक्टर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा लगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट तो दूसरा कंडक्टर लाके जोड़ रहे हैं ना. एनीवे सोचो, कोई बात नहीं, सोचना जरूरी है. अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? इतने शांत क्यों हो समझना? सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड the conductor is like this. इस कंडक्टर का ये एंड हमको दिया हुआ है, से 1 and 3. ये एंड दिया हुआ है, से 5 and 5. This is the direction of current. Can you find out the force on this? Yes, simple है. इसको कनेक्ट कर दो, कोई displacement vector find out कर दो, and then I B into XAB will give us the force acting on this. So I think you have got a very good tool in making the problem look very easy. Okay, so thank you very much for viewing this video and keep watching the further videos to understand the topic completely. Thank you.